Hello everyone. Today we are going to start the budget series. My name is Kamesh Bansoria and I welcome you again in the journey of UPSC Civil Services examination. So this particular series is going to be in two parts. Part 1 will be about the concept and in the part 2 we will discuss the current year's budget, the allocation and all the schemes related to the budget. Why I am very much focused on the concepts? Because in the previous year some questions have been asked from this part. You can see this particular question, the question on the macroeconomic framework statement. This particular question asks about the macroeconomic framework statement, that this particular document is presented in the house, which is mandated by, right? So if you do not have any idea about this concept, then definitely you are going to lose your marks. And this question was asked in UPSC CSE 2020. This is very much a part of our budget budget topic. And similarly, this another question which I think is on a easier side. Anyone who is sincere enough, who is preparing sincerely, definitely have some idea about this question. So I am skipping this question, but this question was asked in UPSC CSE 2016. However, the another question, which is again a good question on deficit financing, and this question was asked in UPSC CSE, I think 2013. So for all these questions, you definitely have some idea about the concepts and not only mugging all those schemes and all. Okay, then let's start. In the very first topic, we are going to discuss the documents which are laid in the parliament along with budget, right? So every year, our finance minister, what he or she does, वो आते हैं, एक स्पीच देते हैं और बजट रखते हैं. वहीं पर बजट के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं. We are going to see those documents. First, if we see, then this is mandated by constitution. Some documents are mandated by the constitution, while others are mandated by some other act. So what we have done is we have classified those documents like documents which are laid under the constitution in the house and documents which are mandated by some other act to be laid in the house. सो अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किन किन डॉक्यूमेंट्स को रखने की बात की है हाउस में, तो वो है हमारे थ्री डॉक्यूमेंट्स which are under these three articles: article 112, article 113 and article 110A. So article 112 basically deals with annual financial statement. We will have detailed discussion on this, so for now I am skipping this, but we will cover it in the coming slides. And Article 113, which is on demand for grants. Look, what happens is Article 113 says कि बजट का वो पार्ट जो कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं, ठीक है? अगर मेरी गवर्नमेंट बोलती है कि बजट का साइज है फॉर एग्जांपल लेट्स से 3.5 लाख करोड़, ठीक है? एंड आउट ऑफ दिस 3.5 लाख करोड़ अगर एक्सपेंडिचर पार्ट की मैं बात करूं और वो फॉर एग्जांपल लेट्स से 3.4 लाख करोड़ आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना? देन दिस पर्टिकुलर अमाउंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट यू नीड टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द अप्रूवल बाय द लोकसभा, ठीक है ना? यहाँ पर लोकसभा के अप्रूवल की क्या की जाती है, बात की जाती है. फर्दर आप ये सब अच्छे से पढ़ेंगे अपने पॉलिटी के टीचर्स के द्वारा, ठीक है? यहाँ मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ. Then Article 110A, this particular article deals with finance bill, and here Article 110A deals with टैक्सेशन पार्ट, ठीक है ना? आप कोई भी नया टैक्स लाएंगे या किसी भी टैक्सेशन में टैक्सेस में चेंज करेंगे, रेमिट करेंगे, तो वो सारी चीजें आपकी डील की जाती हैं फाइनेंस बिल के थ्रू. तो ये जो तीन डॉक्यूमेंट हैं वो रखे जाते हैं अलोंग विद बजट, या हम कहें ये तीन डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग बजट सेशन रखे जाते हैं आपके हाउस में अंडर दी
कॉन्स्टिट्यूशन। देन अकॉर्डिंग अंडर डॉक्यूमेंट्स अंडर एफआरबीएम एक्ट, कुछ डॉक्यूमेंट भाई एफआरबीएम एक्ट 2003 के अंडर रखे जाते हैं। वन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। जो अभी क्वेश्चन हमने देखा था वो पर्टिकुलरली इसी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा गया था। दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एफआरबीएम एक्ट। वी विल कवर एफआरबीएम एक्ट इन द कमिंग लेक्चर्स, सो नीड नॉट टू वरी। अब ये जो पर्टिकुलर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है जो कि सेक्शन 3 के अंडर रखा जाता है, ये क्या करता है, ये बताता है हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट असेसमेंट के बारे में। यानी कि कमिंग ईयर में मेरी जीडीपी कितनी होगी, जब हम बात करते हैं 2025-26 की, है ना, तो इस पर्टिकुलर ईयर में हम कितनी जीडीपी एक्सपेक्ट करते हैं, वी जनरली प्रेडिक्ट अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, और जो प्रेडिक्शन वो हमारा इस डॉक्यूमेंट के थ्रू देखने को मिलता है। देन दी अनदर डॉक्यूमेंट इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। अब ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है, भाई ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेट करता है रोलिंग टारगेट, है ना, रोलिंग टारगेट इन द फॉर्म ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स के रोलिंग टारगेट सेट करेगा कि हमको स्टेजेस के थ्रू अपने 3 इयर्स में कितना टारगेट अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, है ना। आपने देखा होगा एफआरबीएम एक्ट जब हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि भाई कुछ टारगेट्स हैं हमारे फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट को लेकर के, तो वो टारगेट हमको आने वाले 3 साल में कवर करना है, बट स्टेजेस के थ्रू कवर करना है। तो वो जो हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट दोज इंडिकेटर्स इन दिस डॉक्यूमेंट, राइट। देन here is the list of some other documents also which are placed। तो अब आपको हर डॉक्यूमेंट के बारे में याद करने के लिए वेरियस प्रोविजंस याद करने की जरूरत नहीं है ना। जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द लिस्ट so that if some question is asked on this topic, so you can go through some elimination or reach the answer। then आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अनदर वन इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, annual financial statement is nothing but this is more or less more like our बैंक पासबुक, है ना। तो ये जो आपने देखा होगा आपकी जो बैंक पासबुक है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये हमारी सरकार की क्या है, बैंक पासबुक है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज थ्रू दिस डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट बताती है कि वो फ्रॉम वेयर इट इज अर्निंग मनी और टू वेयर इट इज गोइंग टू it is going to spend its money, है ना। So from this document we get to know about receipt part and the expenditure part of the government, receipt and expenditure part। That's why I'm saying that this document is more or less like a bank passbook। However, however, this particular document has two parts. Acha, one more thing. Article 112 says annual financial statement and not budget, because the term budget is nowhere mentioned in the constitution. In place of the budget, what is there? It is annual financial statement। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसने बजट कहीं नहीं बोला, बजट को ही वहां पर नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए, या आपको पता ही होगा कि भाई ये जो बजट हमारा आता है हर साल, उसमें आपको 3 साल के आंकड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, बजट में आपको 3 साल के आंकड़े देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, एक तो जिस साल का बजट है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मानिए एस्टिमेट्स आपको देखने को मिलेंगे 2025 एंड 2026 के, है ना। अगर हमारी गवर्नमेंट आकर के 2025 में और 26 में अपना बजट रखती है, देन तो गवर्नमेंट वहां बोलेगी कि भाई हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा जो रिसिट है, हमारी जो कमाई है, हमारी जो अर्निंग है वो इतनी होगी, एंड हमारा जो खर्चा है यानी कि एक्सपेंडिचर पार्ट है वो फॉर सम अमाउंट इतना होगा। ठीक है, दिस इज एस्टिमेटेड। ठीक है, दिस इज एस्टिमेटेड। अगेन, जब गवर्नमेंट यहाँ की बात करती है तो गवर्नमेंट अपने एक पिछले साल की भी बात करेगी कि हाँ 2024-25 का जो बजट था उसमें अभी तक हमने इतनी अर्निंग की है, यानी कि इतना हमारा रिसिट पार्ट बना है, और अभी तक हमने इतना खर्चा किया है यानी कि इतना हमारा एक्सपेंडिचर पार्ट बना। क्यों?
ये भी एस्टिमेटेड होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इस जब गवर्नमेंट अपना बजट रख रही है 2025 में, है ना, फरवरी 2025 अगर मैं डेट लेके चलूं और गवर्नमेंट अपना फरवरी 2025 में बजट रख रही है, तो उस पर्टिकुलर डेट तक गवर्नमेंट के पास 2024-25 के एक्चुअल डेटा नहीं आता, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अभी भी हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का एस्टिमेटेड डेटा आपके सामने रखेंगे। बट अगर हम एक और साल पीछे जाएं तो 23-24 इस पर्टिकुलर ईयर का गवर्नमेंट के पास क्या होता है, एक्चुअल डेटा आ जाता है। देन नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो क्या करे, हाउस में इसका भी क्या रखे, एक्चुअल डेटा यहाँ पर सबके सामने रखे। ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ हमने बात की कि गवर्नमेंट 3 तरह के डेटा से डील करती है, या मैं कहूँ 3 साल के डेटा की यहाँ पर बात करती है। सिमिलरली अगर मैं एक और बार आपसे कहूँ कि हाँ भाई, अगर मान के चलिए गवर्नमेंट 2026 में अपना एक बजट लाती है, तो 2026 में बजट लगी 2026-27 के लिए, है ना, 26-27 के लिए। अगेन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एस्टिमेटेड वैल्यू रखेगी। ठीक है। सिमिलरली पास्ट ईयर, यानी कि यहाँ पर पास्ट ईयर क्या हो जाएगा, 2025-26, एंड इस पर्टिकुलर ईयर की भी गवर्नमेंट क्या करेगी, एस्टिमेटेड डेटा रखेगी। बट इन दिस सिनेरियो गवर्नमेंट यहाँ पर 24-25 का क्या कर रखेगी, एक्चुअल डेटा रखेगी। तो ये एक छोटा सा वो था इंफॉर्मेशन जो आपको शायद पता हो या आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट 3 अकाउंट्स के साथ डील करता है। 3 अकाउंट्स कौन कौन से हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारे ट्रांजैक्शन होंगे वो इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड होंगे। हर अकाउंट के बारे में एक स्टेटमेंट होगा। ठीक है। भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट होगा, है ना। एक स्टेटमेंट हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का होगा। सिमिलरली एक स्टेटमेंट हमारा होगा यहाँ पर किसका, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। तो नाउ इट इज आवर ड्यूटी टू हैव अ लुक ऑन दिस अकाउंट आल्सो। भाई इन अकाउंट के बारे में भी देख लेते हैं एक बार। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया is established under Article 266, whereas Contingency Fund of India is established under Article 267, and similarly, Public Account of India is under Article 266. Now, what happens is all the income of the government is credited to the Consolidated Fund of India. I repeat, all the income of the government is credited to the Consolidated Fund of India. However, if a government wants to spend even a penny of rupee, then from the Consolidated Fund of India, then parliamentary approval is required. अगर मेरी गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर 1 रुपए भी खर्चा करना है, तो उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। वेयर एज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के हाथ में है, प्रेसिडेंट उठा करके आपको पैसा दे देता है। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर फंड डील्स विद द इमरजेंसी सिचुएशन। और जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, देन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पार्लियामेंट का क्या लें, अप्रूवल लें पहले, और फिर वहां पर फंड को रिलीज कराएं। इसीलिए इस पर्टिकुलर फंड से पहले पैसा क्या करते हैं, प्रेसिडेंट आपको दे देते हैं। देन आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द फंड, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड। यानी कि यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो होगा बट एक्स पोस्ट फैक्ट। ठीक है। एंड दिस फंड, अगर हम बात करें करंटली, इस फंड की जो लिमिट है वो कितनी है, 30,000 करोड़। और इस फंड में पैसा कहां से आता है, देन the money in this fund is credited from the consolidated fund of India, right? Money in this fund is credited from the consolidated fund of India after the approval from the parliament. Clear? Now, public account of India. तो ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एज इट इज क्लियर बाय द नेम आल्सो, दिस अकाउंट belongs to the public and hence no parliamentary approval is required for any transaction. ठीक है। पब्लिक कहाँ पैसा रखती है, भाई पब्लिक का पैसा जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वहां पर, या स्मॉल सेविंग कलेक्शन जो होता है,
यहाँ से जो भी पब्लिक का पैसा आएगा वो हमारे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक 3 अकाउंट्स थे, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिटेल में देख लिया। देन व्हाट अबाउट बजट। देखिए हमारा बजट जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। बजट के 2 पार्ट हैं, एक रेवेन्यू पार्ट, वी ऑल नो अबाउट इट, एंड द सेकंड वन इज कैपिटल पार्ट। ठीक, तो रेवेन्यू और कैपिटल एक बेसिक हम रूल है क्लासिफिकेशन का, कि कोई भी क्लासिफिकेशन आपको ट्रांजैक्शन करना है, कि दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू either रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट, गवर्नमेंट जो अपने डे टू डे खर्चे के लिए जो ट्रांजैक्शन करती है वो सारे इंक्लूड होते हैं कहाँ पर, रेवेन्यू अकाउंट में। यानी कि डे टू डे मतलब सैलरी, सब्सिडी, ये सारे कहाँ पर आते हैं, हमारे रेवेन्यू अकाउंट में। या फिर मैं बात करूं वो सारे खर्चे जो कि लेस देन 1 ईयर वाले टर्म से रिलेटेड हैं या इक्वल टू 1 ईयर वाले टर्म से रिलेटेड है, वो आएंगे रेवेन्यू अकाउंट। वहीं पर कैपिटल अकाउंट में कौन सा खर्च आएगा, ऑल दोस ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू एसेट। ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो एसेट से रिलेटेड है वो आएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन, अच्छा सबसे पहले एसेट क्या है, अगर हम बात करें इन इकोनॉमी, एसेट इज समथिंग विच क्रिएट्स एन इनकम। ठीक है, इनकम फॉर द गवर्नमेंट, राइट। एसेट मींस अगर मैं बजट की बात करूं तो वो सारे ट्रांजैक्शन जिनसे गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है वो हमारे एसेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल लोन, लोन इज एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट किसी को लोन देती है देन इट अर्न्स इंटरेस्ट ऑन इट, है ना। तो लोन पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट अर्न करेगी, एंड इंटरेस्ट इज what it is an income and therefore loan is an asset. However, when government takes a loan, right, when government takes loan then it is on liability side, right. So ये अब हमने यहाँ पर देख लिया। देन सेकंड, आप क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन अगेन, right, or infrastructure. If any transaction is made for the creation of infrastructure then it is under capital account, because in general we see that the duration or life of an infrastructure is greater than 1 year. अब आप देखेंगे, आपको एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो एसेट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, वी हैव सीन इट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स, what why shares are here, because it creates an income, again it is a part of the asset, it creates an income for the government। loans, again ये हम लोगों ने देख लिया। रिकवरी ऑफ लोन, राइट, रिकवरी ऑफ लोन ये भी कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में। एंड बोरोइंग्स, बोरोइंग मींस लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, which borrowings means liability for the government, again capital account। why borrowing is here, because in general the term of the borrowing is greater than 1 year। ठीक है, and loans taken, but you should know, or you should know that the interest payment, interest received on the loans given by the government comes under the revenue part, right. Why interest is under the revenue part while the loan given by the government is under the capital account, because interest is calculated annually, and annually it means for 1 year, है ना। तो मैंने आपको एक थंब रूल जो बताया, आप अगर उससे चलेंगे आप डेफिनेटली क्लासिफाई कर सकते हैं सैलरीज, ग्रांट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, देन व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आप बात करेंगे सर रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, देन रेवेन्यू डेफिसिट इज नथिंग बट whenever the expenditure is greater than the receipt we will always see deficit of some kind, है ना। if revenue expenditure is greater than the revenue receipt, if revenue expenditure, अगर मैं बात करूं revenue expenditure is greater than revenue receipt then it is nothing but revenue deficit। Now coming to the next topic, fiscal deficit. Just because of this topic in the previous slide we have discussed the concept of revenue deficit, okay sorry, for effective revenue deficit। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अब आप समझेंगे लास्ट स्लाइड से। अगर मैं कहूँ टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट, वेट अ मिनट,
Total expenditure is revenue expenditure plus capital expenditure माइनस रेवेन्यू रिसिट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट। अब आप समझेंगे नॉन डेट कैपिटल रिसिट क्या। अगर हम अपने कैपिटल रिसिट वाले उसको देखें, ब्लॉक को देखें, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि वी हैव सीन दीज टू थिंग्स। वन इज रिकवरी ऑफ लोन, borrowings and loan taken, but these borrowings and loan taken by the government are a kind of डेट, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे डेट में, ये हमारे डेट का कंपोनेंट है। एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिट इज नथिंग बट रिकवरी ऑफ लोन। सो ऑल दोज थिंग्स which are of non debt nature are part of the non debt capital receipt. And fiscal deficit is total expenditure minus revenue receipt एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिट। यानी कि फिजिकल डेफिसिट में हम लोग बोरोइंग के पार्ट को कंसीडर नहीं करते, राइट। फिजिकल डेफिसिट में वी डू नॉट कंसीडर बोरोइंग और लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। देन व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वी हैव सीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू receipt, or we can say when the revenue expenditure is greater than revenue receipt, then we see revenue deficit. बट वी बट एवरी ईयर जैसे हमने देखा कि भाई रेवेन्यू का पार्ट एक था हमारा ग्रांट्स, है ना। ग्रांट्स गिवन टू दी स्टेट्स फॉर, जो हर साल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट को कुछ ना कुछ ग्रांट्स देती है। बट some part of that grant is also used for the creation of asset। हो सकता है भाई स्टेट को, अगर बिहार को कोई ग्रांट दिया जाए और बिहार उसमें से रोड बनाए या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या पुल बनाए, तो वो क्या है, एसेट क्रिएट कर रहा है ना। देन इट शुड बी अंडर द कैपिटल अकाउंट लॉजिकली, right? And for that we minus or we subtract that part of the grant which forms the part of the capital formation. Therefore effectively revenue deficit is nothing but the complete revenue deficit, है ना, minus that part of the grant which is used for capital formation by the states. Then primary deficit. Primary deficit is nothing but फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, है ना। अगर हम बात करें भाई प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था भाई फिजिकल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा, जिसको बोलते हैं वित्तीय घाटा। तो ये जो वित्तीय घाटा है, इसमें कुछ पार्ट हमारा इंटरेस्ट पेमेंट का भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ आप बजट में देखेंगे कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट को पे करने में। गवर्नमेंट जो लोन लेती है वहां पर भी इंटरेस्ट लगता है ना। तो फॉर दैट इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, एक अच्छा खासा अपना पार्ट जो है, हम बात करें इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इसको अगर आप प्रीसीडिंग ईयर, जो लास्ट ईयर आपने जो लोन लिया है उसका यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट देना होता है, एंड विच इज अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू अकाउंट। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलता है कि भाई गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर तक जो भी खर्चे किए, जो भी लोन्स या बोरेंग्स लिए हैं, आप उसका इंटरेस्ट भी हटा दीजिए, उसके बाद मैं सही में बता पाऊंगा कि आपका डेफिसिट क्या है। तो विच इज कॉल्ड आर प्राइमरी डेफिसिट। देन व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप अब आप अगर बजट को ही ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, है ना। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने कैपिटल अकाउंट का देखा, प्लस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि भाई रेवेन्यू अकाउंट से हम लोग कुछ कैपिटल भी फॉर्म कर रहे थे, राइट। सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस grants given for capital formation, and when we club these two then we get effective capital expenditure. Then what is about deficit financing। भाई अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, यही क्वेश्चन तो पूछा गया था आपसे आपके प्रीलिम्स में। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग सिंपल, वेरी इजी। आप देखिए गवर्नमेंट क्या करता है, अपने बजट को, अपने बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट या तो पैसा मार्केट से उधार लेगा, बोरो करेगा, या नई करेंसी को प्रिंट करेगा।
है ना? तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। बजट डेफिसिट क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। और जब ये हमारा बजट डेफिसिट होता है, देन फॉर कवर दिस डेफिसिट गवर्नमेंट ईदर प्रिंट्स न्यू करेंसी और बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, एंड विच इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो यहाँ तक अभी हमने कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स देखे, and in the coming lecture we will cover the budget in detail. So this is all. Thank you. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है kameshbansori@gmail.com। यहाँ पर आप इकोनॉमी से रिलेटेड मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। और IS नामा जो हमारा इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ उसको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, IS@IS नामा पर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।